specialty to handle these challenges. So today amongst us, we have two experts in this. So let me have just privilege to introduce Dr. Jinesh Shah. Dr. Jinesh Shah is a consultant child and adult psychiatrist who has completed his MBBS and MRC psychiatry from UK. He is currently associated with as a consultant with Apollo Ahmedabad, and from here there he is extending his services in the area of adult, child, and family mental health and well-being. So I take this opportunity to welcome you, Dr. Jinesh, and I'm sure today the audience will be benefited with your thoughts. Thank you, Sanjay. I am as well. Yeah. And the second speaker with us is Dr. Raman Sharma, who is again completed his MRC MBBS psychiatry from UK, and he is consultant psychiatrist with the leading hospital Medanta in Indore, and he has completed his MBBS from Government Medical College Jabalpur, and after that he got fully trained in UK and worked for over 10 years in National Health Service NHS in UK. So welcome to both of you, sir. And thank you very much. Thanks, Dr. Sharma. I will request Dr. Jinesh, who is going to speak on stress in today's change environment, which is known as now new normal, and as well as that how as an working people we can handle these stress environment better. So without wasting time, I will like to hand it over to Dr. Jinesh. Thank you, Sanjay ji. Thanks. And welcome to all of you. So a very warm welcome and a namaste from me. I was discussing with Sanjay ji about how to make this talk more interactive and lively for you people. Instead of me just talking to you, it would be more useful for us to do an interaction over here. So on that basis, we'll be going ahead instead of, you just, sleeping behind your screens and listening to us. So Sanjay ji, how do you want us to proceed? What would you want us to start with? Sir, my suggestion will be that if you can take up you are muted, Sanjay ji. Yeah, I'm sorry. Our suggestion is how do we proceed is if you can brief a little bit about the subject and how is it impacting and change environment to everybody, and after that we will take up similar way the view of Dr. Raman Sharma, and then we will take direct question from the audience which they have related to work, stress, anxiety, and if they are getting impacted due to all this. Sure, no worries. Thank you, Sanjay ji. So I think, see, stress is a very generic term, and I'll try to talk in a mix of Hindi and English so that it's more conversational style with you all. See, stress and jo tanav hai, it's a very generic term. It's not a clinical term as such. It is a layman's term. It's a term which is used interchangeably by all of us, and it means different things to all of us. For someone, stress is things which are at work. For someone, stress is things which are happening in their educational life. For someone, stress is managing the daily household work. For someone, stress is the kaam wali bai not coming today at home. So it's a very different version of what stress means. The current scenario is that stress has also taken a new turn for us. It's coronavirus, this COVID-19 is now also kind of, symbolizing stress in our lives. I think the main thing which we need to consider now is because of the huge change in the lifestyle which we are experiencing because of, working from home, because of remote working, because of, social and physical distancing, because of a lot of recreational places being shut down, a lot of our normal occupational and educational places being shut down. So it is as if, main aur meri tanhai, we have, become like this, you are here at home or at work and you are talking to yourself.
you are thinking yourself, as if we all are going through a huge phase of introspection. हम बैठे बैठे अब सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. बहुत सारा आत्मचिंतन, ये जो आत्मनिर्भर का जो चल रहा है, उसके साथ साथ में शायद आत्मचिंतन भी हमारे अंदर काफी बढ़ गया है. And that is also causing a lot of stress. People are thinking too much about themselves. People are thinking too much about where life has brought them. We are all, in spite of maybe a lot of us are not in midlife, but we are kind of having a midlife crisis. Even students, young people, teenagers are having a midlife crisis. People don't know what to do with so much time in their hand, because we were never used to this. We were burying all our stress and our thoughts in our daily hum and drum of life. The भागदौड़ में हम सब कुछ भूल रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब उतनी भागदौड़ करनी ही नहीं पड़ रही है और मन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. तो इसके अंदर स्ट्रेस इज टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेजुअली with you all in the next few minutes. Okay, so that's just my brief outline about stress in the current time. And let's hear what Dr. Sharma has to add as well, and then we'll take this further. Is that okay, Sanjay ji? Yeah, it's okay, sir. Right. नमस्कार सभी को मेरी तरफ से. A very good evening to all of you. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Please continue. Okay, fine. Thank you very much. Yes, yeah. Okay, so thank you, Dr. Jinesh Shah, sir, and thank you very much for the initial introduction you have given about stress. देखिए, हम सभी की ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, और आज का स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी डे टू डे लाइफ जो थी वो बिल्कुल एकदम से चेंज हो चुकी हुई है. सर, डॉक्टर जिनेश ने बताया हमें स्ट्रेस के बारे में. मैं बात करूँगा, स्ट्रेस जब एक लिमिट से ऊपर हो जाता है तो वो एंग्जाइटी का रूप ले लेता है. एक येल डॉसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंग्जाइटी परफॉर्मेंस कर दिया था. एक पर्टिकुलर लेवल की एंग्जाइटी हमारे लिए आवश्यक रहती है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने के लिए. लेकिन जब वो एंग्जाइटी एक पर्टिकुलर लेवल से, जब वो स्ट्रेस जो है या एंग्जाइटी जो है एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर पैथोलॉजिकल हो जाती है. तो सबसे पहले तो कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने. अगर हम इन ऑल टुगेदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमने देखा है कि यूके के आंकड़े ये कहते हैं कि 4 में से 1 इंसान अपने लाइफ स्पान में कभी न कभी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझता है. वहीं यूएस के आंकड़े कहते हैं 1 in 5, ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े 1 in 5 कहते हैं, और इंडिया के आंकड़े 1 in 7 पीपल अपनी लाइफ स्पान में कभी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं. वहीं पर्टिकुलरली मैं अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करूं तो करीब 10 करोड़ पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ग्रस्त है, जिसमें कि डिप्रेशन करीब 5.5% पॉपुलेशन को है और एंग्जाइटी कम से कम करीब 5.5 करोड़ पॉपुलेशन को है, और डिप्रेशन जो है 5.5 करोड़ और एंग्जाइटी जो है 4.5 करोड़ पॉपुलेशन को एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हैं. तो ये तो डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं जो कि डायग्नोसिस जिनका बना हुआ है. तो आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा जा रहा है कि डेली कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जिनके केसेस जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो जिनमें की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंसोम्निया, मतलब स्लीप प्रॉब्लम की, जिसमें स्लीप आने में दिक्कत, जिसे इनिशियल इंसोम्निया कहा जाता है. इंटरमिटेंट अवेकनिंग, जिसमें कि बीच बीच में नींद खुलती है, और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग. ये 3 चीज़ें मेनली देखने के लिए आ रही हैं. तो स्लीप प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा उन पेशेंट्स में जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से पहले से ग्रस्त थे उनमें. और दूसरी चीज़, नए प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग, उनको भी बहुत सारी स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही हैं. उसका कारण क्या हुआ कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई. तो स्लीप साइकिल जब हमारी डिस्टर्ब हुई तो लोग बस दिन में सो रहे थे और रात में जाग रहे थे, अब करने के लिए कुछ था नहीं. तो उस वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम आने लगी. काफ़ी एक बड़ा चंक जो है वो प्रॉब्लम्स जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स को लेके सामने आ रहा है. अब एंग्जाइटी क्या, हम सभी को एंग्जाइटी होती है, और एक सर्टेन लेवल ऑफ एंग्जाइटी ज़रूरी भी है एक पर्टिकुलर लेवल पे काम करने के लिए. लेकिन जब वो एंग्जाइटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो हेलो मिस्टर राणा प्रदीप सिंह जी, आपको म्यूट करना होगा प्लीज़ अपने आप को. हाँ जी.
Yeah, sir, please continue. Yes, sir, move on. I think I muted him. Dr. Raman, please continue. I think I have muted him. Okay, can you not hear me? Can you hear me now? No, I can hear you, sir. Yeah. Okay, because what happened is like you muted everybody, so Oh, I I'm was so muted sorry. as I'm well. so Yeah, sorry. okay, okay. So anyways, so I was telling कि एक certain level of anxiety जरूरी होती है परफॉर्म करने के लिए सही से, लेकिन अगर एंजाइटी पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे वर्क को हैम्पर करने लगती है। अब एंजाइटी के दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। प्रेजेंट सिनेरियो में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है? ये भय, ये विचार होना कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए या मेरे किसी फैमिली मेंबर को कोरोना ना हो जाए या हम किसी को कोरोना से ग्रस्त ना हो जाए। ये भय जो है लोगों को लगातार लगा हुआ है, और जब भय ज्यादा हो जाता है तो वो फिजिकल सिम्टम्स में के सामने आता है। फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, और हाथ में झुनझुनी होना, पेट में गुड़गुड़ होना। इंसान को लगता है कि मुझे कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है मुझे कोरोना ना हो गया। तो वो क्या करते हैं, बार बार डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, वो जा रहे हैं उनके अपने आप को चेक करवाने के लिए। तो बेसिकली इसे हम रीएश्योरिंग बिहेवियर कहते हैं साइकोलॉजिकल भाषा में, जो कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में रखता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स जो है एंग्जाइटी के प्रेजेंट हो रहे हैं। कुछ जनरलाइज एंग्जाइटी होती है, जो छोटी छोटी बातों में एंशियस हो जाना। स्पेसिफिक टाइप की एंग्जाइटी होती है, किसी पर्टिकुलर बात पे एंशियस होना। और एक एक हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी होती है। तो ये देख रहा हूँ मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी पर्टिकुलरली कोरोना को लेकर लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 1/4 ऑफ द पीपल जो कि कार्डियोलॉजी क्लिनिक्स में प्रेजेंट हो रहे हैं चेस्ट पेन के साथ में, और 1/4 ऑफ द पीपल जो रेस्पिरेटरी क्लिनिक्स में प्रेजेंट हो रहे हैं सांस लेने की दिक्कत की वजह से, उनको बेसिकली सिम्टम्स जो हैं वो एंग्जाइटी के हैं। तो एंग्जाइटी इस टाइप के सिम्टम्स आपको दे सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको निगलेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले उसको फिजिकली चेक करवाइए। लेकिन अगर आपको आपके डॉक्टर्स या फिजिशियंस आपको कह देते हैं कि भाई नहीं, आपको ये सिम्टम्स नहीं है, आपको कोरोना के सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं, आपकी जांचें भी हमने करनी है, तो आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि इसके साथ में कोप कैसे किया जाए। लेकिन मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या टाइप के सिम्टम्स जो है इस ड्यूरेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तीसरी टाइप की समस्या जो मैंने बहुत देखी है कि जब लॉकडाउन हो गया था तो अल्कोहल की शॉप्स बंद हो गई थी, तो लोगों का एकदम से अल्कोहल को छोड़ने से वो फिजिकल सिम्टम्स अल्कोहल के जो है वो विड्रॉल के आने लग गए थे। जैसे हाथ में कंपन होना, पसीना आना, कई लोगों को तो इतने सीवियर सिम्टम्स हो गए थे कि फिट्स भी आने लग गए थे। तो उनको हमने एडमिट करके उनका इलाज करके उनको सेटल डाउन किया। और टचवुड बहुत सारे मरीज मेरे ऐसे हैं कि जो कि अब अल्कोहल को टच भी नहीं कर रहे। So that is also a very good thing which has happened, and people started coping with their bad habits in a better way. तो कुछ कुछ चीज़ें बेटर भी हुई हैं इस दौरान। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं डिप्रेशन की, तो देखिए डिप्रेशन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हम सभी कभी ना कभी लो फील करते हैं, अपने मन में उदासी फील होती है, हम सभी को होती है। लेकिन अगर वो उदासी 2 वीक से ज़्यादा चल रही हो, ठीक है, मतलब मूड का लो होना, एनर्जी लेवल का कम लगना, किसी काम में मन ना लगना, और उसके साथ में कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस के थॉट्स आना, और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो सुसाइडल थॉट्स आना। तो ये कुछ सिम्टम्स, इसके साथ साथ कभी कभी कॉग्निटिव सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहते हैं डिप्रेशन में, जो कि मेमोरी प्रॉब्लम, मतलब बार बार चीज़ों को भूल जाना या कॉन्सेंट्रेशन सही ना रहना या चीज़ों में फोकस सही ना रहना, तो ये कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं। तो डिप्रेशन जो है बायोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स, 3 टाइप से प्रेजेंट होता है। और अगर आए मन की उदासी, काम में मन न लगना और एनर्जी लेवल का लो होना,
ये अगर आपको लगातार 2 वीक से ज़्यादा चल रहा है तो इसका मतलब आप क्लिनिकल डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि कोरोना, ये जो मैं इसको कहूँगा कोरोना काल, बेसिकली जो मार्च के बाद से चालू हुआ, पहले लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन जो है वो ओपन होने लग गया। इस ड्यूरेशन में देखिए, अब पहले डिप्रेशन यस प्रेजेंट था, सोसाइटी में प्रेजेंट था। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में करीब करीब 5 से 6 करोड़ लोगों को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है। अ, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसके डिप्रेशन के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। उसका रीज़न क्या है? लोगों की जॉब जा रही हैं, लोग परेशान हैं, कई लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सी लोगों की बदल गई है, उनका रूटीन बदल गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली इस काल में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये सिम्टम्स जो हैं ये कुछ कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के हैं। जैसे स्ट्रेस, डॉक्टर शाह ने बोला था स्ट्रेस जो है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेस हम सभी की लाइफ में रहता है, लेकिन स्ट्रेस अभी बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, और अगर एंग्जाइटी और ज़्यादा हो जाए तो डिप्रेशन का रूप भी ले सकती है। तो इन सब से कोप करने के कुछ तरीके हैं, कुछ आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपको स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है कि आप अपने स्लीप साइकिल को सुधारिए। स्लीप हाइजीन उसको कहते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप दिन में ना सोएं, ठीक है, रात में सोएं। मुझे पता है कि चीज़ें ओपन हो गई हैं, लोगों का काम दोबारा चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में जागें और रात में सोएं। दिन में सोने की कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, एक लाइट एक्सरसाइज, कम से कम 45 मिनट्स की वॉक अगर आप कर सकें, या फिर अपनी छत पे काम, अगर आपके पास छत है तो छत पे कुछ एक्सरसाइज कर सकें, या फिर अगर आप बाहर अपनी कॉलोनी में जा सकते हैं मास्क पहन के, तो वो जाके आप चले जाइए। हाँ, विग्रेस एक्सरसाइज हमको मास्क पहन के नहीं करनी है, हमें अगर हम ज़्यादा तेज या ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें मास्क उस समय निकाल देना है। मेक श्योर करता है कि हमारे आसपास एक पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस बना हुआ हो। कोशिश ये कीजिए कि कोई भी अगर आपसे बात करता है तो उसे प्यार से बोलिए, देखिए सर, आपकी भलाई भी इसी में, मेरी भलाई भी इसी में, हम अच्छे दोस्त हैं, हम आप दूसरे से प्यार प्रेम भी रखते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा है कि कृपया करके आप मास्क पहन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि किसी बोलने वाले को या समझने वाले को इस चीज़ का बुरा मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सबकी सेफ्टी के लिए आवश्यक है। तो आप एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद में कोशिश ये कीजिए कि रात के 7 बजे के बाद में, जब भी आपका टाइम है उसके 2 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें। अपने मोबाइल ना देखें, क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेट होता है इससे। टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें। उसके बाद में चाय कॉफ़ी इसका सेवन 2 घंटे पहले तक ना करें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो उसको में 1 या 2 पैग, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं लें। और अगर आप नहीं पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें से दूर रहें। कोई भी अगर रिक्रिएशनल आप ड्रग्स लेते हैं तो उससे दूर रहें। इससे आपकी स्लीप साइकिल भी सही रहेगी और आपकी मेंटल स्टेट भी सही रहेगी। अगर हम एंग्जाइटी की बात करें तो देखिए, एंग्जाइटी तो सभी को होती है, ठीक है। तो अगर एंग्जाइटी आपकी ऐसी हो रही है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी, ये अच्छे टाइप के प्राणायाम हैं। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई पुरानी महापुरुषों की किताब पढ़ सकते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिले अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए। आप अपने बच्चों को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, पुरानी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे अभी रामायण, महाभारत और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स चालू हुए थे, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा समय आएगा कि जो प्रोग्राम मैं अपने बचपन में देखा करता था वही मेरे बच्चे देख रहे होंगे। हालांकि मतलब अगर ये देखिए कि मतलब मैं भोपाल में पैदा हुआ, पूरा इंडिया, जबलपुर में मैंने पढ़ाई करी, पूरा इंग्लैंड में घूम के आ गया, फिर मेरे बच्चे यहाँ पर आए और उसके बाद फिर वो भी रामायण और महाभारत देख रहे। तो समय का चक्र देखिए कितना अलग सी चीज़ हमें दिखा के गया इस समय। तो ये जनरल चीज़ें हैं। और अगर डिप्रेशन में, जब अगर आपको डिप्रेशन या अगर लो मूड हो रहा है तो कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से, प्राणायाम करने से, ये सबसे हमारा डिप्रेशन दूर होता है। और अगर आपको ज़रूरत है पड़ रही है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए। उसमें आपको वो कुछ तरीके बताएंगे जिसकी वजह से आप किस हिसाब से एक अच्छे विचार रख के, किस हिसाब से एक अच्छा बिहेवियर रख के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, जो डिस्कशन के दौरान मैं और डिस्कस करूंगा। और कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो शॉर्ट टर्म के लिए मेडिकेशंस या मेडिसिन दी जाती हैं। और वो बाबा आदम के ज़माने थे जब मेडिसिन जो एक बार लेते तो चिपकी रह जाती थी,
अब इंसान की ज़िंदगी से अब ज़माना बहुत बदल गया है, नई नई टाइप की मेडिकेशंस आ चुकी हैं, हम पर्टिकुलर थोड़े समय के लिए उसको यूज़ करते हैं, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, और चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं और उसके बाद में इंसान नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसको दोबारा इस चीज़ का जो है रिलैप्स जो है वो नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर डिप्रेशन अगर सीवियर हो जाए तो सुसाइडल अटेम्प्ट आपने देखे हैं फिल्मों में, आपने न्यूज़ में देख रहे हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की बातें आ रही हैं कि उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, कुछ कुछ लोग सफल भी हो गए। तो आप अगर क्लिनिकल डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं तो आप जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें और उसका उसका इलाज करवाने की कोशिश करें, या फिर उसको शेयर करने की कोशिश करें। तो ये मैं ब्रीफली मेरे ख्याल से बताना चाहता था एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में। आई होप मेरी बात कुछ आपको समझ में आई होगी। बाकी मैं पैनल डिस्कशन में आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डॉक्टर शाह के साथ में मौजूद हूँ। थैंक यू वेरी मच।